Hello, how are you all? I'm again welcome you all in our online classes. This is on behalf of Dawn Vasco School, Basti. I would like to welcome you all in our online classes. This particular class is especially designed for class 10th related to English literature. And today we are going to discuss about your first book named as First Flight, and we are just going to have information about this book and the chapters included in this. There were, I think, 11 chapters in this, but today we are just going to start the very first chapter named A Letter to God. Right? So be ready, keep yourself fit and fine, and let us start the video and find out that what is there in this first chapter, A Letter to God. So dear all, before we start this chapter, A Letter to God, let us know that what is there in this chapter. This chapter is about what and what we are going to include in this chapter. So let me tell you, this particular chapter is about a farmer named Lancho and his efforts which he puts on the field. One, his crop got ruined due to the bad weather conditions, and as I told you that his name was Lencho, and after that incident he wrote a letter to God asking few questions regarding that. The first one is, does Lencho's letter reach God? Does his letter reach to the God? Does God send him what he want? It is related to money. And the last one is, what happened to him afterwards? This chapter is written by Fuentes, very great novelist, poet, and journalist, and he was the one of the leading revolutionist of the Mexican Revolution. His tenure is in between 17 November 1897 to 10th of December 1966. Okay, now we are just going to start the explanation of this chapter. So be with us, keep yourself calm and quiet, and concentrate towards the explanation of the chapter. चलिए शुरू करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पैसेज वाइज. ओके, we are just going to start the explanation of this chapter passage wise. We will go through with the passage and then we will find out that what happens in that part. Right? So it starts from this. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. तो ये पार्ट कुछ ऐसे नरेट होता है कि उस पूरी घाटी में वहां पर एकमात्र वो मकान था, वो घर था जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, मीन्स एट द क्रेस्ट ऑफ द हिल. और उसकी उस ऊंचाई से वहां पर नदी तथा जो वहां पर जो उसके खेत थे, पके हुए खेत जिनमें मकई की खेती की गई थी,
उनको साफ साफ वहां से देखा जा सकता था, और वहां से दूर दूर तक सब जगह जो बागान थे वो फूलों से भरे हुए थे। और इस तरह की स्थिति को देखते हुए ये बात साफ साफ कही जा सकती थी कि वहां पर अच्छी फसल होने वाली है, फसल की जो पैदावार है वो बहुत अच्छी होने वाली है, इसका भरोसा वो खेत दिलाते थे। और कहते हैं कि वहां पर सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, एकमात्र चीज की जरूरत थी उस धरती को, उस एरिया के जमीन को, कि वहां पर एक बारिश हो जाती, एक भारी बारिश हो जाती, या कम से कम बारिश की फुहारें ही पड़ जाती, बौछार पड़ जाती, तो वो खेत और खुशी से लहलहा उठते। और उस समय की बात करें तो उस पूरी सुबह लेंचो जो था, वो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने उत्तर पूर्व की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ के जो बादल थे उनको देखने के अलावा और कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो ये सिर्फ देखता था कि अगर नॉर्थ ईस्ट से बादल आ जाएं तो बारिश की संभावना हो जाएगी और मेरे खेतों में जान आ जाएगी। The part moves ahead. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones are playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. और तभी वहां पर लेंचो का स्टेटमेंट एक आता है, ए औरत, औरत, आई थिंक वो औरत और कोई नहीं, लेंचो की वाइफ होंगी। और वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें अब सचमुच कुछ पानी मिलने वाला है, क्योंकि बादलों को देखकर ऐसे आसार लगते हैं कि बारिश होगी। उस औरत ने, जो शायद पूरे घर के लिए सपर तैयार कर रही थी, भोजन तैयार कर रही थी, खाना तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, आंसर दिया कि हाँ, अगर ईश्वर की इच्छा हुई, अगर भगवान की इच्छा हुई, यस गॉड विलिंग। जो घर के बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि वहां के जो उस घर के जो छोटे बच्चे थे, जो छोटे लड़के थे, वो घर के नजदीक ही खेल रहे थे। और तब तक खेल रहे थे जब तक कि अंत तक उनको उस महिला ने उन सबको बुला नहीं लिया। और उन्होंने स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया था कि कम फॉर डिनर, सभी के सभी खाना खाने के लिए। It was during the meal that just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. और वो भोजन के दौरान ही, मीन्स खाना खाने के दौरान ही, जैसे लेंचो ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, अंदाजा लगा लिया था, अनुमान लगा लिया था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व की दिशा से, नॉर्थ ईस्ट के साइड से बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। हवा भी बहुत ताज़ी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सुहावनी थी। ऐसे में लेंचो घर के बाहर गया, और उसके घर के बाहर जाने का इसके अलावा और कोई कारण नहीं था कि वो अपने शरीर पर बारिश की जो बूंदें थीं उनके अनुभव का आनंद लेना चाहता था। और जब वो वापस आया तो उसने कहा कि ये आकाश से गिरती हुई बारिश की जो बूंदें हैं, जो वर्षा की बूंदें हैं, वो बारिश की बूंदें नहीं हैं, वो तो नए नए सिक्के हैं। ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10-10 सेंट के सिक्के हैं।
और जो छोटी बूंदें हैं वो 5-5 सेंट के सिक्के हैं। इस बात से जो लेंचो था, ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश था और संतुष्ट था। आगे कहानी कुछ यूं चलती है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flowers, draped in the curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अपने मन में व्याप्त संतोष की भावना से, सेटिस्फाइड रूप से उसने अपने पकी मकई के खेतों को देखा जो फूलों से पूरी तरह भरा था और वर्षा की चादर से ढक चुका था। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ साथ हेल स्टॉर्म आ गया वहां पर। बारिश, हेल स्टॉर्म मीन्स द फ्रोजन ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर, मीन्स ओले गिरने लगे। और कहते हैं कि जब बंदा बहुत ज़्यादा खुश होता है तो कहीं ना कहीं खुशी के साथ कष्ट भी आता है, और वहाँ पर तेज़ हवाएं चलने लगी। हवाओं के चलने के साथ साथ बारिश की बूंदों के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। ये सचमुच ही चांदी के नए सिक्कों जैसे लगते थे। जो बर्फ़ के टुकड़े थे, जो रेन ड्रॉप्स के साथ बर्फ़ की बूंदें गिर रही थीं वहाँ पर, वो वाकई देखने में तो बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की तरह ही लगते थे। और कहते हैं कि बारिश में भीगने की परवाह न करते हुए जो घर में बच्चे थे वो घर के बाहर निकलते हैं और उन जमे हुए बर्फ़ के टुकड़ों को जो मोतियों के रूप में दिखाई देते थे, पर्ल्स के रूप में दिखाई देते थे, उनको इकट्ठा करने के लिए घर के बाहर भागे। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो धीरे धीरे करके मौसम जो था वो काफ़ी ख़राब होता जा रहा था। लेंचो ने बहुत दुखी मन से, दुखी होते हुए कहा, मुझे आशा है कि ये जो मौसम है, ये जो हेल स्टॉर्म है, वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, ये शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे ओले बरसते रहे लगातार। घर के ऊपर, बाग में, पहाड़ी की ढलानों पर, मकई के खेतों में और लगभग पूरी घाटी में सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। खेत जो थे वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, मानो जैसे उस खेत को बर्फ से ढक दिया गया हो। और ये बर्फ जो थे वो बिल्कुल नमक की तरह पूरे खेत पर फैले हुए दिखाई दे रहे थे। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. And when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. और अब इतने भयंकर तूफान के बाद, इतने भयंकर हेल स्टॉर्म के बाद पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रह गया था। मकई पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। मक्के के जो खेत थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। पौधों पर से जो फूल दिखाई देते थे वो फूल भी अब जाते रहे थे, वो फूल भी अब वहाँ पर नहीं थे। लेंचो की जो आत्मा थी, लेंचो की जो सोल थी, वो काफ़ी दुखी थी। उस समय वो उदासी से भर गई थी। और जब ये हेल स्टॉर्म ख़त्म हुआ, जब ये तूफ़ान समाप्त हुआ, तो वो अपने खेतों के बीच में जाकर खड़ा हुआ और अपने बेटों से, अपने बच्चों से, अपने लड़कों से कहने लगा,
और उसने अपने बच्चों से कहा, अ प्लेग ऑफ locusts would have left more than this. The hail was left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. तो लेंचो जो था वो अपने खेत के बीच में जाकर खड़ा हुआ और अपने बेटों से ये बात कहने लगा कि एक प्लेग ऑफ लोकस्ट जो कहते हैं, इसको कहते हैं टिड्डियों का दल। और ये टिड्डियों का दल भी शायद इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ छोड़ जाता जो तबाही इस तूफान ने मचाई है। और ओले जो थे उन्होंने तो हमारे लिए कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। और इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, यह एक बहुत ही दुख भरी बात है। हमने जितना काम किया, जितनी मेहनत की, वो सब बेकार गया और यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, हमारी सहायता कर सके। और इस वर्ष तो शायद हम भूखे ही मर जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन अभी भी उन सभी के दिलों में जो उस घाटी के बीच उस अकेले घर में रहते थे, वहां एकमात्र आशा अब भी थी, ईश्वर से मदद की आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. अभी भी उन लोगों के मन में भगवान को लेकर आशा थी और उन लोगों ने समझाते हुए इस बात को आपस में डिस्कस किया, आपस में बातें की कि इतना दुखी मत हो, इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ लुट गया, लेकिन ये बात याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। और कहते तो यही हैं कि भूख से कोई भी नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो उस पूरी रात लेंचो जो था वो अपनी एकमात्र आशा के विषय में ही सोचता रहा। वो भगवान के बारे में सोचता रहा, ईश्वर की सहायता के विषय में सोचता रहा। उसकी आंखें, जैसा कि उसको ये सिखाया गया था, उसको समझाया गया था, उसको बताया गया था कि भगवान की जो आंखें हैं वो सब कुछ देखती हैं, और वह भी जो मनुष्य के अंतर मन में होता है, इनर कॉन्साइंस में होता है। लेंचो बैल की तरह काम करने वाला इंसान था और वो अपने खेतों में पशुओं की तरह ही काम करता था। पशुओं की तरह यहाँ के कहने का मतलब ये नहीं होता कि वो बैलों की तरह या गाय बैल बनकर काम करता था, नहीं, वो बड़ी मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत से काम किया करता था। लेकिन इन सब के बावजूद, चूंकि वो खेतों में काम करता था, इन सब के बावजूद कहते हैं कि उसको लिखना भी आता था। और जो आने वाला संडे था, कमिंग संडे जो था, उस संडे को सुबह होते ही वो एक लेटर लिखने लगा, जिसे वो खुद शहर लेकर जाता और वहाँ पे मेल बॉक्स में डालता। मीन्स जो वहाँ पर शहर में जो डाकखाना होता है, वहाँ के डाक में डालना चाहता था।
इसलिए उसने संडे की सुबह ही वो लेटर लिखना शुरू किया। और ये जो लेटर था वो कुछ और नहीं था। ये जो लेटर उसने लिखा, दैट लेटर वाज अ लेटर टू गॉड। वो ईश्वर को लिखा गया लेटर था, ईश्वर को लिखा गया पत्र था। So dear students, this one was our first video regarding the chapter A Letter to God. Stay tuned with us. Be happy, be safe, keep yourself involved in your studies. Wait for our next video regarding the compilation of the chapter. In the next video, we will tell you that what happened at the end. Stay safe, stay healthy, stay at your home, and put your comments in the comment section so that we can get information regarding your understanding. Have a nice day ahead. Thank you.